and Silas praised God. All the prisoners heard and they gave gospel even to the jailer. Sometimes when you're sad, when you praise God, I feel that God takes your depression and gives us His joy. That can only happen during praise and worship. Praise and worship is a surgery done by God free of charge. You need also a heart transplant. Spiritually, God can do it. And that can only happen if you worship. Before the picnic, I shared with you praise and worship, and I'm continuing that topic. और पिकनिक जाने से पहले उस रविवार हम जो है वो स्तुति आराधना के बारे में सीख रहे थे और पास्टर उसमें आगे बढ़ेंगे. I gave you a lot of points about praise and worship. और हमने काफी जो है वो बिंदुएं सीखी थी स्तुति आराधना के ऊपर. Let's pray as we go ahead. और जैसे हम आगे बढ़े हम प्रार्थना करेंगे. Father, we thank you for this time. पिता इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं. Thank you that the entrance of your word brings light. धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन का आना हमारे जीवन में. Even as I speak your word, और जैसे हम आपके वचन कहें, your word will penetrate the heart, soul, the joint and marrows of our bodies. और आपका जो वचन है वो हमारे हृदय को, हमारे दिल को, हमारे हृदय को, हमारी हड्डियों को जो है वो छू देगा. Let the name of Jesus be magnified, glorified and praised. और यीशु मसीह के नाम को जो है सारी महिमा मिले और सारी स्तुति मिले. In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं. Now, praise and worship is such a thing that you don't only come and do it in the church. और स्तुति आराधना एक ऐसी चीज है जो हम सिर्फ कलीसिया ही आके नहीं करते You हैं. need to make it your lifestyle. और हमें हमारे ये जीवनचर्या बनाना Today, है. as a Christian, I want you to ask you a question and you answer this question. Do you know 10 songs by heart? और आज एक मसीह होने के नाते हम चाहते हैं कि आप खुद अपने आप को ये प्रश्न पूछें कि क्या आपको 10 गाने जो है बिना देखे आते हैं? Oh, you don't know. कि आपको नहीं आते Do हैं? you know 5 praise, 5 worship at least? At least. कम से कम आपको 5 स्तुति के गाने और 5 आराधना Oh, के you गाने know आते 20 हैं. Bollywood songs and 28 Shireen songs. या फिर आपको 20 जो है वो सांसारिक जो गाने हैं वो सारे आते हैं. Because sometimes when people come here to sing songs, they bring the mobile along. क्योंकि कई बार जब किसी को यहाँ पे गाने का मौका दिया जाता है तो वो अपना मोबाइल लेकर आते हैं साथ में. A small boy like Asher never carries mobile. He can also keep the screen and this, but he doesn't. He by hearts the lyrics, and this will help you in your personal life also. Your memory, which is bhusa, right, will become strong when you memorize words. और यहाँ पे ये छोटा बच्चा जो ऐशर जब गाना गाता है तो वो जो है वो अपने सामने कोई भी स्क्रीन नहीं रखता है या मोबाइल नहीं रखता है. वो गाना पहले जो है वो सीखता है, उसके बाद जो है वो उस गाने को जो है गाता है. Because you're not singing only words. क्योंकि आप सिर्फ शब्द नहीं गा रहे You're हैं, singing God's word. आप परमेश्वर के वचन गा When रहे you हैं. put that God's word and you memorize this, your brain will become sharp. तो जब आप परमेश्वर के गानों को या परमेश्वर के वचन को लोगे और उसे याद करोगे तो आपका जो दिमाग है वो तेज हो जाएगा. Many times we are very forgetful. और कई बार हम जो है वो बहुत बुलक्कड़ And बन if you are जाते हैं. forgetful, you will lose money, you will lose learnings, you will lose lot of things in life. और Because अगर- as a person, if anybody is sharp, they will always have 10 times more power than you. और अगर आप बुलक्कड़ इंसान हैं या आप बहुत जल्दी चीजें भूलते हैं तो आप पैसे भी खो देंगे, आप चीजें भी खो देंगे और बहुत सी चीजों में जो है आप अपने आप में जो है वो नुकसान देखेंगे. पर जिसका दिमाग जो तेज होता है उसमें सामर्थ्य होता है कि वो बहुत सारी And चीजें your कर पाए. mind doesn't become sharp by having tablets. और आपका दिमाग जो है वो सिर्फ दवाइयां खाने से जो है वो तेज Your नहीं होता. mind will only become sharp by meditating God's word, which is the lyrics of the song. और आपका दिमाग सिर्फ एक ही चीज से जो है वो तेज होगा, वो है परमेश्वर के वचन पे मनन करने से और जो गाने हैं उनके जो बोल है उसे याद करने Now से. there was a situation in the Bible. Let's read 2 Chronicles chapter 2 verse 20. Chapter 20 verse 21 to 23. 2 Chronicles chapter 20 verse 21 to 23. हम दूसरा इतिहास का 20वां अध्याय 21 से 23 वचन देखेंगे. Let's read it. और जैसे वचन कहता है, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभामय होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है. जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सीयर की पहाड़ी देशों के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए. 23. क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सीयर की पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की और जब वे सीयर की पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके तब उन सभी ने एक दूसरे के नाश करने में हाथ लगाया. Now King Jehoshaphat was a king in Israel. और यहाँ पे यहोशापात एक राजा था जो इजराइल में राजा था. Suddenly he got news that 3 kingdoms are coming to attack him and their army was very great than his army.
और अचानक से उसे खबर मिलती है कि 3 राज्य जो है वो उसके ऊपर जो है वो हमला करने आ रहे हैं और उनकी सेना जो है वो यहोशाफात की राजा की सेना से कई ज्यादा He थी। was fearful. वो डर गया था। Now, instead of organizing an army, look what he did. He organized an army, and before the army, he appointed singers to sing song to God. और यहाँ पे अपनी सेना तैयार करने के बदले उसने क्या किया, उसने अपनी सेना तो तैयार की पर उस सेना के आगे जो है उसने ऐसे गायक लोगों को खड़ा किया जो परमेश्वर की स्तुति कर सके। Think about it. Everybody is coming with swords, and he is coming with a trumpet, singing songs to God. How foolish it will look. और अगर हम देखें तो उसके सामने जो भी आ रहे थे वो सब हथियार लेकर आ रहे थे, पर वो जो है वो तुरई लेके परमेश्वर के गाने गाते हुए उसके आगे जो है लोग जो है जा रहे थे। But he knew something what others didn't knew. He knew how to praise God. पर उसे एक चीज पता थी जो दूसरों को नहीं पता थी, उसे ये पता था कि परमेश्वर की स्तुति कैसे The करें। Bible says, as they sang praises, the Lord defeated the enemy. और पवित्र शास्त्र कहती है कि जैसे वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर ने उनके जो दुश्मन थे उनका नाश किया। If you want to defeat your enemy, और अगर आप आपके दुश्मन को हराना the चाहते हैं only way is to praise God. तो सिर्फ एक ही तरीका वो है परमेश्वर की You स्तुति don't करना। praise God by keeping your mouth shut. You praise God by opening your mouth. और आप परमेश्वर की स्तुति अपना मुंह बंद करके नहीं कर सकते हैं, आप उसकी स्तुति अपना मुंह खोल के करते हैं। Sometimes people in worship, they just stand and see the lyrics. The lyrics are not so beautiful. When you sing it, it becomes beautiful. और कुछ लोग जो है जब आराधना का समय होता है तो सिर्फ खड़े रह के जो बोल है उसे देखते रहते हैं, तो वो बोल सुंदर नहीं है। जब हम उसे अपने मुंह से गाते हैं तब वो सुंदर होते हैं। Last time when people heard this message, they messaged me, give me some songs I want to buy. और गए बार जब किसने संदेश सुना तो उन्होंने पास्टर को मैसेज किया कि आप हमें कुछ गाने भेजो ताकि हम उन्हें सीख Make सकें। it a practice. उसे एक आदत Because बनाइए this will help you in your personal life. और ये आपके व्यक्तिगत जीवन में भी मदद करेगा। Trust me, in school I was not outspoken. I never gave one also elocution competition, nothing. और स्कूल के जमाने में पासवान जो है वो इतना जितना आज वो बोलते हैं खड़े रह के वो इतना नहीं बोल सकते थे। कोई भी ऐसा कंपटीशन होता था जहाँ उन्हें किसी चीज पे बोलना I है got in वो my नहीं बोलते whole tenure of school, from standard 1 to standard 10, I got one certificate. और इनके पूरे स्कूल में 1 से लेके 10वीं क्लास तक इन्हें सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिला That है। also for quiz. और वो भी सिर्फ My general knowledge was good right from before. और छोटेपन से जो उनका जनरल नॉलेज है वो बहुत अच्छा था। Today when you see me, it's all because I have memorized the word. और आज जो हम पासवान को देखते हैं वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उन्होंने जो वचन है उन्हें जो है याद किया है। And I can talk to anybody. I can sell even snow to people in Himachal. और पासवान जो है वो किसी से भी जो है वो कैसे भी बात कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि वो एक बर्फ की पहाड़ी भी जो है हिमाचल में लोगों को भेज सकते हैं। What am I saying? Not people. Wait. Snow. So what am I trying to say? When you want to be smart, you need to read the word of God and memorize. Not read like a parrot. Memorize that. तो जब आप जो है वो समझदार बनना चाहते हैं या अच्छे बनना चाहते हैं तो आपको जो है वचन को जो है वो याद करना है। When you have a situation when everybody comes against you, और जब आप कोई ऐसी परिस्थिति में आते हैं जब हर कोई आपके खिलाफ हो जाता है, like King Jehoshaphat, जैसे यहोशाफात राजा था, your family members come against you, आपके परिवार वाले आपके खिलाफ your होते हैं, boss is against you, आपका बॉस आपके खिलाफ your है, people are against you, your own people. आपके खुद के लोग आपके खिलाफ है, How do you fight them? तो आप कैसे उनसे लड़ेंगे? We don't fight them with swords, we don't fight them with words, we fight them with praise and worship. तो हम अपने शब्दों से या कोई हथियार से उनके साथ लड़ाई नहीं करेंगे, पर हम उनके साथ जो है वो स्तुति आराधना से लड़ाई And करेंगे। the devil will keep your mouth shut. और शैतान मुमकिन कोशिश करेगा हमारा मुंह बंद Because when करने he की, keeps your mouth shut, you will lose. When you open your mouth and praise God, you will win. क्योंकि जब वो आपका मुंह बंद करता है और हम हमारा मुंह बंद रखेंगे तो हम हार जाएंगे, पर जब हम हमारा मुंह खोलेंगे स्तुति आराधना करेंगे तो हम जीतेंगे। Nowadays we do video recording of the service. और आजकल हम जो है हमारी जो सभा होती है उसका हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। Sometimes Soham takes the video from this side, from this angle. और कई बार सोहम जो है यहाँ से खड़ा रहकर उस एंगल का वीडियो लेता So the है। moment the people see that the video is coming on, तुझे छोड़ के जाऊंगा. और अचानक से जिसको पता चलता है कि सोहम जो है रिकॉर्डिंग कर रहा है या कैमरा आ रहा है तो वो गाने लगते हैं, हाथ उठाने लगते हैं। Everything what you do, I have an eye for that. और I हम- can make out who's doing what. जैसे पासवान ने कहा कि हम जो कुछ भी करते हैं पासवान की नजर है हम पर, वो जानते हैं कि कौन क्या कर We रहा are है। not worshipping people. हम यहाँ पे लोगों की आराधना नहीं We are not करते, pleasing pastor. हम अपने पासवान को जो है खुश करने We को are नहीं करते। worshipping the King of Kings and the Lord of Lords because He deserves all the praise, all the glory, all the honor. और हम यहाँ पे जो है राजाओं की राजा, प्रभु की प्रभु की जो है स्तुति करते हैं, जो सबसे महान है, जो हर एक महिमा हर एक प्रशंसा के जो है वो लायक है। The Bible says in 2 Chronicles chapter 20 verse 22. Let's go to that. I just want you to show you something here. हम दूसरा इतिहास 20वां अध्याय और 22 वचन देखेंगे।
When they appointed, no, verse 23, 22. When they began to sing and praise the Lord set ambushes against the people of Ammon, Moab, Mount Seir, and were come against Judah. और जैसे वचन कहता है कि जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सियर की पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरोध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। Maybe you are not getting the victory because you are not praising God. और शायद आपको वो जीत नहीं मिल रही है क्योंकि आप परमेश्वर की स्तुति नहीं Do करते। it for 1 week, your life will change. आप एक सप्ताह ये करो, आपका जीवन बदल Because when you जाएगा। don't praise God, you start worrying about others. क्योंकि जब आप परमेश्वर की स्तुति नहीं करते हो तो आप दूसरी चिंताएं करते हो। All the temptation of the world will be in your hand. और दुनिया की सारी जो चिंताएं हैं या जो भी परीक्षा है वो सब आपके सर पर And the रहती है। full world's share market you are controlling. When you have nothing in the stocks. और जैसे पूरे दुनिया का भार जो है, जैसे शेयर मार्केट है, वो पूरा आपके ऊपर चल रहा है जबकि आपके Some पास people are नहीं है। so paranoid about their lives. और कुछ लोग अपने जीवन को लेकर इतने घबराए हुए रहते See, हैं। 2 people can be paranoid. सिर्फ 2 लोग जो है वो घबराए हुए हो सकते Poor हैं। because they have nothing. एक है गरीब जिसके पास कुछ And नहीं if you're है, very rich, और दूसरा है जो बहुत you have धनी too है। much to handle. आपके पास बहुत ज्यादा And I'm पैसा sure है। you're not both. You're in the middle. So don't, you have nothing to bother. और हम ना तो गरीब में आते हैं ना बहुत धनी में आते हैं, हम बीच में आते हैं, तो हमें किसी चीज की चिंता नहीं Praise करनी। God. तो परमेश्वर की स्तुति करो। When you're going to the train, praise God. जब आप ट्रेन में जाते हो परमेश्वर की But स्तुति करो। sometimes from our heart only Hindi picture songs come. पर हमारे मुंह से और हमारे हृदय से सिर्फ हिंदी गाने आते हैं And you hum. और फिर हम उसे गुनगुनाते हैं। Out of the fullness of the heart, the mouth speaks. और जैसे पवित्र शास्त्र कहता है कि हृदय की पूरी गहराई से जो तुम्हारे हृदय के अंदर रहता है वही तुम्हारे मुख से निकलता है। If you want to know a person's love for you, make them angry. और अगर आप एक इंसान का जानना चाहते हो कि वो इंसान आपसे कितना प्यार करता है तो आप उसे गुस्सा दिलाइए। They say, I did not mean it. That is the time they meant it. और फिर वो Because it came from the heart. फिर वो आपको कुछ उल्टा कह देंगे और फिर कहेंगे कि नहीं मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, पर वही उनके कहने का मतलब होता है क्योंकि वो उनके हृदय से बातें आती हैं। Fill your heart with the songs of God. और अपने हृदय को जो है वो परमेश्वर के गानों से भरिए। Challenge yourself that in 2026 I will buy heart 50 songs. और अपने आप को एक चुनौती दो कि 2026 में मैं 50 गाने जो है वो याद करूंगा। If you buy heart 50 songs, अगर आप 50 गाने hear याद me out. करते If you हो, buy heart 50 songs, अगर आप 50 गाने याद करते हो, everything in your life will increase by 5%. तो आपके जीवन में हर एक चीज जो है वो 5 गुना जो है वो बढ़ Because जाएगी। you're doing some hard work. क्योंकि आप कोई कड़ी मेहनत You're कर रहे training your brains, which you're not using, to do something which you're not done. हो। तो आप आपके दिमाग को जो है ऐसी शिक्षा दे रहे हो जो आपने कभी की, जिसका आपने इस्तेमाल नहीं किया है, वो चीज करने को जो आपने कभी नहीं की है। Lewis Hamilton is one of the greatest Formula 1 racers. और लुइस हैमिल्टन जो है वो फॉर्मूला 1 रेसर जो गाड़ी होती They है, asked him, what do you do in your pastime? तो उन्होंने उनको पूछा कि तुम अपने खाली समय में क्या करते He हो? said, I do things which I have not done. Now I'm learning the keyboard. Now why he has to learn the keyboard? Is he a musician? He's training his brains that you don't understand all these things. These are the technique to become great. तो उसने कहा कि मैं वो चीजें करता हूँ जो मैंने कभी नहीं की है। जैसे वो कीबोर्ड जो है वो सीख रहा है, वो कोई म्यूजिशियन नहीं है, तो वो तो भी कीबोर्ड सीख रहा है। वो अपने मन को, अपने दिमाग को जो है वो तैयार करता है आगे जाने के लिए। That's why during the bread and cup I invite everybody to come here and say things. Some people request, please pastor, have mercy on me. I said, I am not Jesus. I'm not nothing. और इसलिए जो प्रभु भोज का समय होता है, पास्टर हर किसी को जो है वो मौका देते हैं कि वो यहाँ पे आए और वचन को लेके कुछ बोले। And if that person screams too much at home, I said, जैसा तू घर पे scream करता ना, इधर ऐसे भी scream कर इधर। और अगर कोई व्यक्ति घर पे बहुत ज्यादा चिल्लाता है तो पास्टर उसे ये कहते हैं कि तू जितना घर पे चिल्लाता है वैसे यहाँ पे This will चिल्ला। all help you in future. You will thank me one day. और ये सारी चीजें आपको भविष्य में जो है वो मदद करेगी। हम Because if you परमेश्वर cannot का speak, no matter how much degree you have, you will never able to present yourself in a good way. और अगर आप बोल नहीं सकते हो, भले ही आपने कितनी भी पढ़ाई लिखाई की हो, कितनी भी डिग्री हो, पर आप अपने आप को जो है वो दूसरों के सामने जो है वो अच्छे So praise and worship keeps the enemy away. तो स्तुति आराधना जो हमारा दुश्मन है उसे हमसे दूर रखता है। One pastor said the highest form of prayer और एक पास्टर ने कहा था कि सबसे महान जो तरीका है प्रार्थना करने का is praise. वो है स्तुति The करना। highest form of prayer is praise. जो सबसे महान तरीका है प्रार्थना करने का वो स्तुति है। Someone said, don't play the song, और किसी ने कहा कि गाने मत बजाओ, pray the song. गाने की प्रार्थना करो। So that's why you're not performing here. When you come for worship, it's not A.R. Rahman performing. तो जब हम यहाँ पे स्तुति आराधना के लिए आते हैं तो यहाँ पे जो खड़े हैं सब वो कोई परफॉर्मेंस नहीं So देते। there are two types of worship leaders. One is a performer and one is a worshiper. और 2 तरीके के आराधना करने वाले अगुवे होते हैं। एक होता है जो परफॉर्म करता है कि अपनी जैसी कला है वो दिखाता है, और एक है जो सच्ची आराधना करता Performer है। only entertains people. और जो परफॉर्मर होता है कि अपनी कला दिखाने वाला वो सिर्फ दूसरे But a लोगों को खुश करता worshipper है। enables others to get close to Christ.
और जो सच्चा आराधना करने वाला रहता है वो दूसरों की मदद करता है कि वो मसीह के नजदीक आ सके। So very important, we are not performers. तो बहुत महत्व है कि हम यहाँ पे सिर्फ परफॉर्म करने नहीं आए। All your eyes has to not be on us. We are no one. We are just showing you that He is the way. और हमारी आंखें जो है यहाँ पे जो स्तुति आराधना के अगुवे हैं जो लोग हैं उनके ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये लोग यहाँ पे खड़े रहते हैं हमें वो मार्ग बताने के लिए कि सिर्फ परमेश्वर ही मार्ग है। Now let's go to Joshua chapter 6 verse 20. हम यहोशू का 6 अध्याय और 20वां वचन You know देखेंगे the story about Joshua. और हम सबको यहोशू की कहानी पता है। Let's go to Joshua chapter 6 verse 20. यहोशू का 6 अध्याय और 20वां वचन कहता है, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शर्पना नवे से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए उस नगर को ले लिया। Joshua had to conquer Jericho. और यहाँ पे यहोशू को जो है वो यरीको को जो है वो जीतना था। But Jericho had walls around the city. पर यरीको के नगर में जो है वो एक दीवार थी उसकी And the walls were very strong. और जो वो दीवारें थी वो बहुत मजबूत थी। Joshua's army in the natural could not conquer the walls. और नैसर्गिक रूप में अगर हम देखें तो जो यहोशू की सेना थी वो उस पे जो है विजय नहीं पा सकती थी। But God told Joshua every 6 days go around the city and pray. Praise. परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि हर 6 दिन तक जो है उस नगर के जो है चारों ओर तू घूम और मेरी स्तुति कर। On the 7th day when you finish your round, shout. और 7वें दिन जब तू तेरे चक्कर को पूरा कर देता है तब तू चिल्ला। As you shout, the walls will come down. और जैसे तू चिल्लाएगा वो शर्पना जो है वो नीचे आ He जाएगी। did that. उसने वैसा Think किया। about it. He's telling Joshua, as you shout, the walls will come down. और अगर हम सोचे तो परमेश्वर कह रहा है कि जैसे तू चिल्लाएगा तो वो शर्पना गिर जाएगी। Never the walls came down before that. This was the first time. और उसके पहले कभी भी वो शर्पना नहीं नीचे गिरी थी या टूटी थी, ये पहली बार था। Think about it. Joshua would have thought that if you would have shouted and the walls would not come, he would have been a fool leader. People would have laughed at him. और अगर हम सोचे तो यहोशू सोच सकता था कि अगर वो उस वक्त चिल्लाता और अगर वो शर्पना नीचे नहीं आती तो लोग उसे मूर्ख अगवा समझते। But he obeyed the word of God. पर उसने परमेश्वर के वचन का When पालन God किया। told him to shout, he shouted with the people. जब परमेश्वर ने उसे कहा कि तू चिल्लाना तो वो लोगों के साथ चिल्लाया। And the Bible says, as they shouted, the full walls of Jericho collapsed. और पवित्र शास्त्र बताती है कि जैसे वो चिल्लाए तो पूरी जो यरीहो की शर्पना थी वो नीचे गिर गई। And they could conquer that city. और वो उस नगर पे जो है विजय पा सके। You also have walls in your life. हमारे भी ऐसे जीवन में जो है वो दीवारें The हैं। walls of insecurity, the walls of failure, the walls of jealousy, the walls of poverty. As you shout praises of God, those walls will come down in the name of Jesus. और हमारे भी जीवन में ऐसी दीवारें हैं जो गरीबी की दीवारें हो सकती है या एक हार की दीवारें हो सकती है या अपने आप को असुरक्षित महसूस करने की दीवारें हो सकती है। तो जब हम परमेश्वर की स्तुति से चिल्लाएंगे तो वो हमारी दीवारें नीचे गिर जाएंगी। When we go for picnic, जब हम पिकनिक के लिए जाते हैं, especially in a resort, खासतौर से रिसोर्ट में, you have worldly songs playing over. और उस पूरे रिसोर्ट में जो है वो सांसारिक गाने चलते हैं। So sometimes the believers also you see them dancing, but church में कभी गाना मुंह भी नहीं खोल रहे हैं. The devil has kept their mouth closed. The devil has bound their mouth. हम विश्वासियों को भी देखते हैं कि जब वो गाने सुनते हैं तो वो नाचने लगते हैं और यहाँ पे कलीसिया में जो है उनका पैर तक जो है नहीं हिलता है। क्यों? क्योंकि शैतान ने उनका मुंह बंद कर रखा है। You need to open your mouth. तो हमें अपना मुंह खोलने की जरूरत Your है। victory is in your tongue, not in my tongue. You open your mouth, and the walls will come down. तो हमारी जो जीत है वो हमारी खुद की जबान में है, किसी और की नहीं। जब हम हमारा मुंह खोलेंगे तो वो हमारे जीवन की दीवारें नीचे गिर Why जाएंगी। we shout? हम क्यों चिल्लाते हैं? It's a shout of victory. It's a shout of triumph. It's a shout of boldness. और हम चिल्लाते हैं क्योंकि वो जो चिल्लाहट है वो जीत की चिल्लाहट है, वो विजय की चिल्लाहट है। You don't need to do it now loudly in your house shouting. People will think you're going nuts. तो हमें हमारे घर में खड़े रह के कोई इतनी जोर जोर से चिल्लाना नहीं है कि हमारे घर वाले हमें मूर्ख समझे। You can shout in your own voice. हम हमारी खुद की आवाज में चिल्ला सकते To हैं cut the walls what are disturbing you inside. उन दीवारों को तोड़ने के लिए जो हमें अंदर से जो है परेशान कर रही Make है। it a habit every day in the morning. और एक आदत बनाइए हर सुबह 2 songs you will sing to God. 2 गाने आप परमेश्वर के लिए गाएंगे। And after 1 week you will change the song. You will not sing that same old Jana Gana Mana from the last. It's not an anthem. और फिर उस 6 दिन के बाद जो है आप आपके गाने जो है वो बदलेंगे। आप वही 2 गाने जो है वो जिंदगी भर नहीं गाएंगे परमेश्वर के Try लिए। do this, especially when you are. Someone said, if you want to live long, और किसी ने ऐसे कहा कि अगर आप लंबी आयु जीना चाहते हैं keep your brains used. तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो Keep using your brains. Make movement of your brains, hands, legs. You will live long. और अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, अपने हाथ पैरों को चलाओ तो आप जो है वो लंबा चलोगे। So do this
Shout praises to God and you will have your victory. तो आप ऐसा करिए, परमेश्वर के लिए जो है वो स्तुति गाइए, स्तुति चिल्लाइए, तो आप आपकी जीत देखेंगे। Especially when you looking out for a house. और खास तौर से जब आप घर खोज रहे हो, You're looking out for a new job. आप एक कोई नई नौकरी देख You're रहे looking हो, out to get married. आप शादी करना चाहते हो, Sing praises to God. तो परमेश्वर की स्तुति करो Create an atmosphere of worship. और एक आराधना का वातावरण बनाओ, Because that atmosphere will get you your victory. क्योंकि वही वातावरण जो है हमें हमारी जीत दिलाएगा। Without that, you can do nothing. उसके बगैर हम कुछ नहीं कर So सकते। Joshua was elevated because of this. तो यहोशू को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया था इस वजह से, Because he obeyed the voice of the Lord. क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज का पालन किया So था। praise brings promotion. तो स्तुति जो है वो उन्नति When you लाती है। praise God, God will elevate you, God will promote you. तो जब हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे तो वो हमें ऊंचा उठाएगा, वो हमारी उन्नति करेगा And you will be blessed because of that. और उसकी वजह से हम आशीषित होंगे। Now Acts chapter 16 verse 25 to 26. Acts chapter 16 verse 25 to 26. Nitin, Panivan. प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 से 27 वचन देखेंगे। We know this story about Paul and Silas. और ये पौलुस और सिलास की कहानी हम सब जानते हैं। Yeah. तो जैसे वचन कहता है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुएं उनकी सुन रहे थे Next. कि इतने में एकाएक बड़ा भूडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदीगृह की नवें हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े और दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर सम्मा की बंधुएं भाग गए, सब बंधुएं भाग गए। सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। So now let me share with you what happened and why did Paul and Silas go to prison. और हम आपको बताना चाहेंगे कि क्या हुआ था और क्यों पौलुस और सिलास जो है वो बंदीगृह गए थे। They were preaching the gospel वो सुसमाचार बांट रहे थे and people persecuted them and put them in prison. और लोगों ने उनपे जो है वो सताव किया और उन्हें बंदीगृह में डाल Why दिया। they were in prison? Because they were preaching the gospel. It was not because of their fault. They could have grumbled that Lord, we are preaching the gospel and we are in prison. और वो क्यों बंदीगृह में थे? क्योंकि वो जो है परमेश्वर का सुसमाचार जो है वो बांट रहे थे और लोगों ने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया। वो कुड़कुड़ा सकते थे कि परमेश्वर हम आपका काम कर रहे हैं तो भी हमें बंदीगृह में डाल दिया है। They were beaten up. उन्हें मारा गया But the था। Bible says at midnight they sang hymns to God and the prisoners heard. Means they sang so loud that everybody could hear. और फिर पवित्र शास्त्र बताती है कि आधी रात को जो है उन्होंने परमेश्वर के जो भजन है वो गाए और जो दूसरे लोग थे बंदीगृह में उन सब ने भी वो भजन सुने, मतलब वो इतनी जोर से गाए। What does it show us here? तो ये हमें क्या दिखाता है? When you are in pain, जब आप दर्द में हो don't call people and tell your pain. तो लोगों को फोन करके अपना दर्द मत सुनाओ। Don't tell people are not interested. They got lot of pain themselves. What will heal you? और लोगों के खुद के पास अपने बहुत दुख और दर्द है तो वो आपको क्या चंगाई देंगे? Call out to God. परमेश्वर को पुकारो, Sing praises to Him. उसकी स्तुति करो, Because He has the resources to rescue you from your pain. क्योंकि उसके पास वो स्तोत्र है जहाँ पे वो आपको आपके दर्द से छुटकारा दे But सकता है। we immediately dial people. We dial WhatsApp. We dial अरे मेरे को हेल्प कर, मेरे को ये बोल, मेरे को ये कर, मेरे को पैसा दे, 500 ट्रांसफर कर, 600 ट्रांसफर कर. What is this? We are depending on man. पर हम क्या करते हैं कि हम जो है वो लोगों को देखते हैं, लोगों को फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि मेरा ये दुख है या मुझे पैसे चाहिए तो 500 दे, 600 दे। हम ये बताते हैं कि हम लोगों पे, मनुष्य पे निर्भर है। Don't go to the phone. Go to God's throne. तो हमें फोन के पास नहीं जाना है, हमें परमेश्वर के सिंहासन के Sing पास जाना है। praises to God. परमेश्वर की स्तुति करनी The Bible है। says, as they sang praises, the chains that bound them were opened up. और पवित्र शास्त्र बताती है कि जैसे वो परमेश्वर की स्तुति करने लगे तो जो बेड़ियों ने उन्हें जकड़ रखा था वो खुल गई। All of us here have vices. और हम सबके अंदर कोई ना कोई कमियां और हैं। वे लोग गुटखा खाते हैं. कोई लोग गुटखा खाते हैं And from years they are eating गुटखा. और सालों से वो कर रहे हैं, From the time of Adam and Eve. आदम और हवा के समय They से। are eating गुटखा. Their hands are not getting just rubbed out only. So eating गुटखा. Some people drink. Some people smoke. और कुछ लोग गुटखा खाते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं, कुछ लोग सिगरेट पीते Some हैं people are addicted to pornography. और कुछ लोग जो है वो गंदी पिक्चरें देखने से जो है उनकी आदत रहती है। Everybody has some vice. और हर किसी के अंदर कोई ना कोई कमियां होती है, बुराई होती If you है। want to break that vice, अगर आप उसे तोड़ना चाहते we हैं, cannot do it alone. हम अकेले नहीं कर But we सकते, can do it by singing praise to God. पर हम वो कर सकते हैं परमेश्वर की But स्तुति if you करके। don't, some people have the habit of sleeping every time. Anytime you talk to them, they feel deep sleep.
और कुछ लोगों की आदत होती है सोने की कि आप उनसे बात भी करते रहो और वो गहरी नींद में चले जाते And हैं। such people want to become businessmen. और ऐसे लोगों को जो है वो बड़ा व्यवसायिक Don't बनना become है। businessmen, become watchmen. That is better. You're not capable. तेरी बस की नहीं है. और जैसे पास्टर ने कहा कि ऐसे लोग व्यवसायिक नहीं बन सकते हैं क्योंकि तुम्हारी बस की नहीं है। What am I saying? Sing praise to God. तो हम क्या बताना चाहते हैं कि परमेश्वर की स्तुति करो। For singing praise to God, you need to know what is the song. पर परमेश्वर की स्तुति करने के लिए सबसे पहले आपको गाने पता होने चाहिए। Now, why do we close our eyes and sing praise? So why do we close our eyes and worship? और हम हमारी आंखें बंद करके क्यों परमेश्वर की स्तुति करते हैं या आंखें बंद करके क्यों उसकी आराधना करते हैं? Why? So that we feel we experience blindness. We experience like blind Bartimaeus. That how blind Bartimaeus felt when he said, "Jesus, Son of David." कि हम इसलिए अपनी आंखें बंद करते हैं कि हम अपने आप में जो है वो अंधापन को जो है वो महसूस कर सके या बार्तिमेउस को कैसे महसूस हुआ था वो महसूस कर सके। We close our eyes so that we don't get distracted with children roaming around. तो हम हमारी आंखें इसलिए बंद करते हैं ताकि हमारा ध्यान भटक ना पाए जो बच्चे आसपास घूमते हैं We उनसे। close our eyes so that we don't feel the vibrations of our mobile. और हम हमारी आंखें इसलिए बंद करते हैं कि अगर हमारे जेब में हमारा फोन जो वाइब्रेट हो रहा है हमारा ध्यान उस पे ना जाए। We close our eyes so that we don't smell the side person who has not put deo. और शायद हम अपनी आंखें इसलिए भी बंद करते हैं कि हमारे बाजू वाले ने जिसने डिओ नहीं लगाया है तो उसकी दुर्गंध That's why हमारे we पास have 2 ACs here. है। और इसलिए हमारे पास यहाँ पे 2 एसी। So we are giving you all the more luxury to worship God. तो हम आपको सबसे ज्यादा आराम दे रहे हैं कि आप परमेश्वर के Now आराधना here करें। also there is a problem. There are some people who don't have, they are very thin in skin. They have become skeleton. और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनकी चमड़ी जो है वो बहुत पतली We होती will है। provide blankets also. We are a rich church, we are best church. तो हम उनके लिए जो है वो ब्लैंकेट भी दे देंगे। Not to sleep, to worship God. और Take the blanket and worship Him. वो ब्लैंकेट ओढ़ के वो रजाई ओढ़ के वो सो ना जाए पर परमेश्वर की आराधना करें। So all this we are doing why? So that we give Him praise. तो हम ये सारी चीजें इसलिए करते हैं ताकि हम उसकी स्तुति कर See, if सकें। you are happy doing your vices, then God will not help you. Some people are happy doing their vices. You know, even giving bad words is a vice. Some people doing the word. They are in the congregation, I'm preaching to them, I can see that they're giving the F word, they're giving the B. What are you doing, man? Crazy हो. और अगर आप खुश हो आपकी उन बुरी आदतों को करते हुए तो परमेश्वर आपकी जो है वो कभी मदद नहीं करेगा। और जैसे कुछ लोगों को जो है वो आदत होती है, बुरी आदत होती है गाली देने की, जैसे अगर वो कलीसिया में भी खड़े होते हैं तो भी उनके मुंह से जो है वो गालियां निकलती रहती है, तो ये बहुत गलत बात है। The only way to stop bad words. तो सिर्फ एक तरीका है अपने मुंह से गालियां बंद Sing करना। praises. Make your tongue habituated to sing the praises of God. तो परमेश्वर की स्तुति करो, अपने जबान को जो है वो आदत डालो कि वो परमेश्वर की स्तुति करे। Only the praise and worship can break your vices. और सिर्फ परमेश्वर की स्तुति और आराधना ही जो है आपके अंदर की बुरी आदतों Nothing को else दूर can करे। break your vices. और कोई चीज आपकी बुरी आदतों को And नहीं not only कर on सकती। Sunday you come and sing praises. और सिर्फ रविवार को ही आके आप स्तुति आराधना ना करो। Because what happens, you know, when in the olden times, और जैसे पुराने करार में, when no, not पुराने जमाने में, in the olden times we had this radio to listen to songs. और पुराने जमाने में रेडियो होते थे जिसपे हम गाने सुनते थे। So we had to turn the frequency of the radio to get the transmission or the frequency, so that the songs could come. तो उस रेडियो में एक बटन होता था जिसे हमें घुमाना पड़ता था जिससे हमें वो फ्रीक्वेंसी मिल सके कि वो चैनल जो है वो कनेक्ट हो जाए और हम गाने अच्छे से सुन Directly सकें। we don't put the radio on and it comes. No. और एकदम से आप रेडियो चालू करके सिर्फ ऐसे गाने नहीं आने You have लगते to turn the button थे। उस बटन को आपको घुमाना पड़ता था to hear the frequency. ताकि आप उस गाने को अच्छे से सुन So सको। if you're not praising and worshiping God from Monday to Saturday, and on Sunday you're coming, look at the examples. तो अगर आप सोमवार से शनिवार तक परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं करते हो और रविवार को आके करते हो Then your frequency, your head has to be turned this way. तो आपका दिमाग को भी जो है वो घुमाने की That's why जरूरत some people feel dry worship है. अरे खुद तू dry है, gravy डाल मंचूरियन. है। और इसलिए को लगता है कि बहुत सूखी जो है वो स्तुति आराधना हुई है तबकि वो खुद अंदर से बहुत सूखे हुए हैं। So when you're dry, you feel everything is dry. तो जब आप खुद अंदर से सूखे हुए रहोगे तो आपको हर एक चीज आपके आसपास सूखी हुई Everybody लगेगी। is worshiping, but yet that person is dry because from Monday to Saturday he was abusing. और हर एक लोग जो है यहाँ पे घर रह के स्तुति आराधना करते हैं पर उसे ही जो है वो खालीपन, वो सूखापन महसूस होता है क्योंकि सोमवार से शनिवार तक वो गाली दे रहा था। God said in His Word, the same mouth you worship God, the same mouth you curse, or you speak bad language. Is it justifiable? और परमेश्वर ने खुद ने अपने वचन में लिखा है कि जिस मुंह से तुम मेरी स्तुति करते हो उसी मुंह से जो है तुम श्राप देते हो, गालियां देते हो। We मade a rule in our house और पासवान ने जैसे अपने घर में एक नियम बनाया है that whoever speaks any bad word, कि कोई भी अगर कोई भी गाली देता है, गलत शब्द बोलता है, hit our mouth this way. और जोर से लगेगा, मतलब खुद लेगा तो मैं हाथ लेगा और मारेगा टाइम.
तो वो खुद अपने मुंह पे जो है वो जोर से मारेगा। So everybody now what happens if anybody speaks that सब लोग चढ़ जाते हैं उसके ऊपर तीनों, अरे भाई मारो उसको। तब ऐसा होता है कि अगर किसी एक के मुंह से भी जो है वो गलत शब्द निकलता है तो बाकी तीनों जो है उसको घेर लेते हैं कि अब इसको मारो। And Asher and Zion combined, they become one team. और एशर और जायन एक साथ मिलके जो है वो एक टीम बन अरे जाती Dad, है। you spoke this, so you hit yourself. अरे ये बराबर नहीं मारा, बराबर से मारो। फिर वो कहते हैं कि अरे पापा आपने जो है ये गलत शब्द कहा तो अब आप अपने आप को मारो, और नहीं आपने सही से नहीं मारा है, दोबारा मारो। Learn to reward your body. Learn to discipline your body. So- Then only you will become a good disciple. Some of us are not disciplining our body. You will not take your body to heaven. You know where it will go? In the dust. तो अपने जो शरीर है उसको जो है वो अनुशासन में रखो और अपने शरीर को अनुशासन में रहना सिखाओ। क्यों? क्योंकि हम हमारे शरीर को स्वर्ग में लेके जाएंगे, वो तो मिट्टी में ही मिलेगा। Don't say enjoy, enjoy. This is not enjoyment. Being disciplined is the greatest enjoyment because you're conquering your fears. और अपने शरीर को जो है वो अनुशासन में रखना बहुत जरूरी है, तभी जो है आप आनंद उठा सकते हो। क्यों? क्योंकि जो आपकी जितनी भी खामियां हैं उस पर आप विजय पाते So हो। this what happened when Paul and Silas praised God. All the prisoners heard and they gave gospel even to the jailer. और यहाँ पे यही चीज हुई जब पौलुस और सिलास जो है वो परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे थे, तो जितने लोग थे बंदी गृह में उन सब ने सुना और उन्होंने जो जेलर था उसे भी सुसमाचार दिया। Sometimes when you're sad, और कई बार जब हम दुखी होते when हैं, you praise God, जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, I feel that God takes your depression and gives us His joy. तो हम ऐसे महसूस करते हैं कि परमेश्वर जो हमारा दुख है, जो दर्द है, वो ले लेता है और उसका आनंद हमें देता है। That can only happen during praise and worship. और वो चीज सिर्फ स्तुति आराधना में हो सकती है। Praise and worship is a surgery done by God free of charge. और प्रेज एंड वर्शिप जो है वो एक तरीके का ऐसी सर्जरी है या ऑपरेशन है जो परमेश्वर के द्वारा किया जाता है मुफ्त में। Luke's mother-in-law went through a bypass surgery, cost him 6 lakhs. और जैसे लूक की सास जो है वो एक बाईपास सर्जरी से गुजरे जिसकी कीमत 7 लाख थी। You need also a heart transplant. तो हमारे भी हृदय का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है Spiritually, आत्मिक रूप से। God can do it. सिर्फ परमेश्वर कर And सकता that है। can only happen if you're worshiping. और वो चीज तब हो सकती है तब आप उसकी आराधना Now, करो। how should we praise God? तो हम परमेश्वर की आराधना कैसे कर सकते How हैं? should we praise God? हम परमेश्वर की आराधना कैसे कर सकते Let me हैं? show you from the Bible. Psalms 95 verse 1. और हम भजन संहिता का 95 अध्याय और पहला वचन देखेंगे। Psalms 95 verse 1. भजन संहिता का 95 अध्याय पहला वचन कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंची स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार Let करें। us shout joyfully to the rock of our salvation. और जैसे वचन कहता है कि जो हमारे उद्धार की चट्टान है उसको हम ऊंचे स्वर में गाएं। Means how do we praise God? We sing songs loudly. तो हम परमेश्वर की स्तुति कैसे कर सकते हैं? गाने जोर से We गाकर। don't sing songs murmuring. We are not doing lip singing like how Justin Bieber did when he came to India. We are not doing that. We're singing loudly. तो हम जो है सिर्फ अपने मुंह में जो है वो शब्द को ऐसे गुनगुना नहीं सकते हैं, हमें जोर से परमेश्वर की स्तुति करनी है। As you sing loudly, और जैसे आप जोर से गाते हो God will change your life. तो परमेश्वर आपका जीवन And we बदलेगा। don't have any restrictions here. और यहाँ पे हमारे कलीशा में जो है वो कोई भी रोक टोक नहीं When we है। were in Saint Xavier School, जब हम सेंट जेवियर स्कूल में थे the moment the music is to go loud, और जैसे ही जो म्यूजिक है वो जोर से the बजता था, side society जो बाजू वाली सोसाइटी थी is to come and say, put the music down. तो वो आके कहती थी कि जो तुम्हारा म्यूजिक है उसकी Then आवाज we used to कम say, put करो। the music down. फिर हमें आवाज कम Then करनी again people पड़ती used थी। to come in form again loud. Again they are running from there. Band karo. और फिर लोग जो है और जोश में आते थे और तेजी से गाते थे, तो वो फिर आते थे और वो फिर हमें रोक But देते थे। today by the grace of God we have our own church. We can sing, we can shout, we can dance and praise Him. पर आज परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारा खुद का जो है वो कलीशा है, हम यहाँ पे चिल्ला सकते हैं, हम नाच सकते हैं, हम उसकी आराधना स्तुति कर Nobody सकते can हैं। stop us. कोई भी हमें नहीं रोक As सकता। long as we are praising inside, outside you sing, we get फटकार. Here I'm talking about. और जब तक हम यहाँ पे अंदर रह के जो है परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं जोर से, कोई हमें रोक नहीं सकता, पर बाहर हम ऐसा नहीं So करते। how we sing the songs? Loudly. तो हम गाने कैसे गाएं? जोर से गाएं। Now, there are times when I'm in between people who sing very bad. You know what's a besura? Let me tell you what's a besura. It's a very annoying thing, especially when a person knows to sing and you're sitting with a person who doesn't know to sing, who's not talented enough. और खासतौर से पासवान जब ऐसे लोगों के बीच में होते हैं जिनको गाना जो है वो नहीं आता है, वो बहुत बेसुरे होते हैं। जैसे एक इंसान को जो है गाना आता है, उसे धुन पता है, सब पता है, और सामने वाला व्यक्ति है जिसे कोई सुर कोई ताल नहीं पता है, वो एकदम बेसुरा है। But the person who doesn't know to sing thinks they are A.R. Rahman.
That's the beauty about this. When a person is a fool, he doesn't know he's a fool. Everybody is saying fool, fool, but that person he's a big singer. और जिस इंसान को गाना जो है वो गाना नहीं आता है, उसे लगता है कि वो बहुत बड़ा जो है वो गायक है, जैसे ऐसा होता है। जो मूर्ख होता है उसे खुद को नहीं पता होता है कि वो मूर्ख है, बाकी सब उसे मूर्ख कहते हैं। So you are surrounded by two people. तो आप जो है वो दो लोगों से घिरे हुए हो Who don't know to sing. जिसे गाना नहीं आता, Still you have to sing. तो भी आपको गाना गाना है। Especially it irritates me. और खासतौर से पासर को बहुत चिढ़ I मचती feel है। like slapping those children. बंद कर. Sing in your heart to God. Don't sing this. Don't butcher the song. और पासर को ऐसा लगता है कि मैं उन दोनों को थप्पड़ मारूं और कहूं कि तू तेरे मन में जो है गाना गा, तू ऐसे जोर जोर से मत गा। But what to do? Everybody cannot be doing everything. पर क्या कर सकते हैं, हर कोई इंसान हर एक चीज नहीं कर Still you सकता, have to praise God. तो भी आपको परमेश्वर की स्तुति There was a करनी है। singer called Matt Redman. और एक गायक था जिसका नाम था मैट He's written रेडमैन। some beautiful songs. उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने His songs लिखे also won Grammy Awards. और उन्होंने ग्रैमी अवार्ड भी जीता है। Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my When soul, the music fades. when the music Now the fades। story of this song of When the Music Fades. और जो ये गाना है when the music fades, इसकी कहानी है। That day in the church, every musician was playing wrong chords. और उस दिन कलीसिया में जो भी बजाने वाले जो म्यूजिशियंस होते हैं वो सब गलत कॉर्ड बजा And रहे they are थे। all professionals. और वो सब जो है वो सीखे हुए लोग थे। Suddenly the mixer was giving problem. Suddenly the guitar was jarring. Something or other was happening. और उस दिन अचानक से जो मिक्सर है उसमें जो है समस्या आ रही थी, या गिटार जो है गिटारिस्ट सही से गिटार नहीं बजा रहा The pastor got था। angry. तो जो पासवान था उन्हें बहुत गुस्सा He आया। said, "Put the music off. Sing praises to God without music." तो उन्होंने कहा कि जो म्यूजिक है उसे जो है वो बंद करो और परमेश्वर की स्तुति करो बिना म्यूजिक के। That day, God gave him this song. When the music fade, yet I will praise you. तो उस दिन परमेश्वर ने उन्हें ये गाना दिया कि when the music fades, तो भी मैं आपकी आराधना You're not करूंगा। coming to church to hear the beautiful music. You're coming to church to praise God. और हम यहाँ पे कलीसिया जो है वो अच्छा संगीत जो बज रहा है उसे सुनने को नहीं आते हैं, हम उसकी आराधना स्तुति करने आते हैं। Some people say, "अरे पास्टर आप बजाया आने के लिए क्या बजाया? What बजाया? What are you talking? Are you crazy?" जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पासर आज बहुत मजा आया था, तो पासर खुद बोलते हैं कि क्या चीज है। कॉन्ट्रा पिला तो मजा आएगा मेरे को। Don't talk this. I can be really nasty if I want. So we are not coming here to do maza and saza. We are coming here to give glory to God. और हम यहाँ पे जो है वो कोई मस्ती या मौज करने नहीं आते हैं, हम परमेश्वर की जो है महिमा करने आते हैं। So many times when I go to different churches, और कितनी बार जब पासर दूसरी कलीसियाएं जाते हैं, they butcher the song. वो गाने का खूब Divana करते song हैं। becomes worship song. और जैसे दीवाना जो गाना है उसे वो आराधना It's का very गाना है। annoying. और वो बहुत चिढ़ मचती है। But still I have to praise God. तो भी That's a test for me. और तो भी ये खड़े रह के परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि वही उनकी परीक्षा है। One thing I always think about my life is if you don't know something, don't do it. और एक चीज जो पासर ने अपने जीवन के लिए सीखी है कि अगर तुम्हें कुछ चीज नहीं पता है तो मत करो, But if you know something, improve on it. पर अगर आपको कुछ चीज पता है तो उसमें जो है आप और अपने आप को Then सिखाओ। only you will be successful. Sometimes people are doing some things which they are not called for. और कुछ लोग जो है कई बार ऐसी चीजें करते हैं जिनके लिए उन्हें बुलाया ही नहीं गया। So first we sing loudly to God. तो पहला था कि हम परमेश्वर के लिए जोर से गाते Now why हैं। do we have to play instruments? We can clap our hands and sing. और हमें जो है जो यंत्र है यहाँ पे उसे क्यों बजाने की जरूरत है, हम ताली भी बजा सकते हैं। You can sing that also. All types of actions they do. Okay, Psalms 150. और हम भजन संहिता का 150वां अध्याय देखेंगे। Yeah. Yeah. Now let's go to verse 2. और हम दूसरा वचन देखेंगे। Let's read this till the last verse. Yeah. और हम दूसरे वचन से आप पढ़ेंगे आगे। उसके पराक्रमों के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंह का Praise फूकते him with trumpet. और नरसिंह का फूकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। Harp was an instrument before the guitar. It has lot of strings. Yeah. और गिटार के पहले जो वीणा थी वो था। Long back, yeah. डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। Next. ऊंची शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। Next. जितने प्राणी है सबके सब या की स्तुति करे, या की स्तुति करो। All the instruments are given here. और यहाँ पे जितने भी जो यंत्र है वो सब दिए गए हैं। It's the last chapter of Psalms. और ये आखिरी जो वचन है अध्याय है भजन संहिता का। And you know, Psalms is the biggest book in the Bible. It has 150 chapters. और भजन संहिता सबसे बड़ी किताब है पवित्र शास्त्र में, उसमें 150 अध्याय At the है। end it says, "Let everything that has breath praise the Lord." और फिर अंत में ये कहता है कि जितने भी लोगों में श्वास है वो सब परमेश्वर All की of us स्तुति have करें। breath.
हम Only सब- one day our breath will go when we'll go there. In job is far. Bye bye. हम सबके अंदर जो है वो सांस है और हम सब परमेश्वर की स्तुति कर सकते Till you हैं। have breath, और जब तक आपके अंदर सांस है, keep praising. उसकी स्तुति करते हो। One thing we will be continuing to do from here and there also is praising. Heaven also you'll have to praise. So here it is net practice. Please do well. और एक चीज है जो हम जो है वो कंटिन्यूली नियमित रूप से करते रहेंगे, यहाँ भी और वहाँ भी, वो है उसकी स्तुति करना, क्योंकि स्वर्ग में भी हम उसकी स्तुति करेंगे। In heaven there is no word and all because you are standing in front of the word of God, Jesus. और स्वर्ग में जो है वो कोई भी परमेश्वर का ऐसा वचन नहीं होगा, क्योंकि हम खुद जो वचन है, जो यीशु है, उसके सामने खड़े रहेंगे। One thing will be common, worship. और एक चीज सामान्य रहेगी, वो है If स्तुति। you can't worship for half an hour, उसमें भी 15 मिनट लेट. अगर आप जो है वो आधा घंटा स्तुति नहीं कर सकते हो, उसमें भी आप 15 मिनट देरी से आते हो, Danger signs. तो ये खतरनाक के चिन्ह है। Make yourself accustomed now. तो अपने आप को अभी से ऐसा तैयार करो, Then you'll be relaxed there. I'm used to do all this. तब आप वहाँ पे आराम से रहोगे कि आपकी आदत है कि आप ये सब कर सकते So हो। how we praise God? We praise God singing loudly. We praise God with instruments. तो हम कैसे परमेश्वर की स्तुति करते हैं? हम ऊंचे स्वर में उसकी स्तुति करते हैं और हम यंत्र बजाते हुए उसकी स्तुति Suppose you करते don't हैं। know to play an instrument, then what? और अगर हमें जो है वो यंत्र बजाने नहीं आते, Everybody is not called to play instruments. और हर किसी की बुलावट में आई है कि वो कुछ ना Let's कुछ see what यंत्र happens. बजाए। Psalms 47 verse 1. हम भजन संहिता का 47वां अध्याय और पहला वचन देखेंगे। Psalms 47 verse 1. भजन संहिता का 47वां अध्याय पहला वचन कहता है, हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। Clap your hands. तो हमें ताली बजाना है। When? Not in worship, in praise. और कब? आराधना के समय नहीं, स्तुति के समय। Why you're praise? Why you're clapping your hands? तो- You're honoring God. हम तालियां क्यों बजाते हैं स्तुति के समय? हम परमेश्वर का आदर When करते हैं। Narendra Modi comes, everybody claps. और जब नरेंद्र मोदी आता है तो हर कोई ताली बजाता He's the है Prime Minister. कि वो हमारा प्रधानमंत्री King है। of Kings and Lord of Lords has come here. Clap. तो राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु यहाँ पे आए हैं, तो हमें भी Don't ताली give a बजानी है। stiff position. Some people stiff. Stanities. Attention. अरे भाई, clap करो. और ऐसे एकदम अकड़े हुए जो है वो मत खड़े रहो, कि जैसे एकदम सावधान पोजीशन में मत खड़े रहो, हमें ताली बजानी some है। people yawn during praise और वो भी आ जाता है वीडियो में. Yawning. और कुछ लोग जो है वो स्तुति के समय जो है वो उबासी लेते हैं, और वो भी जो है वो वीडियो में आ जाता है। So drink coffee and come. Don't yawn. तो अगर आपको जो है वो नींद आती है, उबासी आती है, तो कॉफी पी कर आओ, Sleep well. अच्छे से सो कर If आओ। you know Sunday you have to come for church, जब आपको पता है कि रविवार आपको कलीसिया आना है, sleep on Saturday night. तो शनिवार की रात को सो जाओ। Don't watch Netflix till 3 o'clock in the morning. Pablo Escobar. और 3 बजे तक जो है वो नेटफ्लिक्स में देखो। So people want to watch this kind of things. That nut fellow. Glorify him. और जैसे पाब्लो एस्कोबार है, लोगों को उसको जो है वो देखने में दिलचस्पी रहती है कि हम उसको देख के उसकी बड़ाई करें। So we clap our hands and sing. तो हम अपने ताली बजाकर जो है वो गाना। One more way we praise God. Psalms 149 verse 3. और एक और तरीका है कि हम उसकी स्तुति करते हैं। भजन संहिता का 139वां अध्याय और तीसरा Psalms वचन। 149 verse 3. भजन संहिता का 149 Let them praise his name with dance. वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें। Praise God, we have people like Sean who encourage us to dance. भाई डांस करो तभी लोग डांस नहीं कर रहे. और परमेश्वर की स्तुति हो कि हमारे पास शॉन जैसे लोग हैं जो हमें उत्साहित करता है कि हमें नाचते हुए उसकी स्तुति करनी है। Dance is a small way of reducing your fat in the body. और नाचना जो है वो एक छोटा तरीका है कि हमारे शरीर में जो चर्बी है उसे हम कम कर सकते See, हैं। when you're standing, not this way. और जब आप सीधा खड़े रहते हैं Just ना, if you can see your stomach. If you can see your stomach, bad way. तो आप देखो कि आप आपके पेट को देख सकते हो कि नहीं। अगर आपको आपका पेट दिखता है तो खराब It's है। not a sign of prosperity. उन्नति का Some people have चिन्ह। seen so big stomach and jeb also is khali. कुछ लोगों का इतना बड़ा पेट बाहर निकला हुआ रहता है पर उनका जेब भी खाली रहता है। Yourself fit. अपने आप को तंदुरुस्त रखो। All this will matter here. ये सब जो मायने रखता है। Because sometimes some people are 35, और कई बार कुछ लोग 35 साल के but होते they look हैं like 60. पर वो 60 साल के दिखते हैं। Don't do that. Be fit. तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें तंदुरुस्त Move रहना your body. Sean always encourages. ऐसा करो दाएं बाएं. He tried to push this ball also. तो हमें अपना शरीर जो है वो हिलाना है, चारों बाजू जो है हिलाना है। Some people just look at Sean through and through. They're scanning him. कुछ समझ में नहीं आ रहा. कुछ नहीं होएगा इसका. God में कुछ नहीं होएगा इसका. और जब शॉन हमें बताता रहता है कि हमें कैसे नाचना है, तो कुछ लोग करने कैसे उसको देखते रहते हैं। Just see. कितना अच्छा है. अरे भाई तू अच्छा बन जाए ना. और वो सिर्फ देखते हैं कि अरे बाबू वो कितने अच्छे से कर रहा है, पर हमें भी जो है वो करना है, सीखना है। Sometimes people behave like the overseas pastor. They come here to check. Tick tock. Everything is nice. अरे भाई pastor नहीं हूँ. और कोई नहीं. और कई बार लोग ऐसे बन के आते हैं कि जैसे वो बाहर के दूसरे पास आए हैं वो देखने के लिए कि हर कुछ जो है सही से हुआ Sound है। system tick. Word tick. भाई तू
वो रेटिंग नहीं देगा, गॉड विल गिव अस द रेटिंग। और वैसे आते हैं देखने के लिए सिर्फ कि हाँ यहाँ पे जो स्तुति आराधना थी वो सही हुई, So वचन we सही should हुआ। sing loudly. तो हमें ऊंचे स्वर में गाना है, We should sing with instruments. हमें यंत्र बजाते We हुए should गाना है, clap our hands. हमें ताली बजाते हुए We गाना should है, dance. हमें नाचते हुए Now, how do गाना है। we worship? हम आराधना कैसे कर सकते हैं? First point. पहली I बात, shared about praise. Now worship. I'm completing it fast. Psalm 63 verse 4. हम भजन संहिता का 63वां अध्याय और चौथा वचन Psalm देखेंगे। 63 verse 4. और जैसे वचन कहता है, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरे नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। I will lift my hands in worship. मैं अपने हाथ उठाकर तेरी आराधना Why करूंगा। do we lift our hands? हम हमारे हाथ क्यों उठाते हैं? When the police catches the thief, जब पुलिस चोर को पकड़ती है he says surrender. And they put their hands up. तो वो अपने हाथ ऊंचा करता है और कहता है कि When you मैं, lift your hands, you say, God, I surrender. I can do nothing. I'm a failure. You help me. तो जब आप आपके हाथ जो है आराधना के समय ऊंचा उठाते हैं तो आप परमेश्वर को कहते हो कि आप अपने आप को जो है परमेश्वर को सौंप रहे हो, आप कुछ नहीं कर सकते उसके बगैर। Some people don't even lift their hands. और कुछ लोग अपने हाथ तक नहीं उठाते। आधा हाथ है क्या? ऐसे डंबल नहीं उठा रहा है। Lift your hands high. और उनके हाथ जो है वो इतने जाते हैं ऊंचे तक, उनके हाथ ही नहीं जाते हैं। And now sometimes some people have that so habituated, they look, अरे pastor fear. और अभी कुछ लोगों के अंदर जो है वो इतनी आदत है या ऐसा डर आ गया है कि वो पहले देखते हैं कि पासा उन्हें देख रहे हैं क्या, अगर हाँ तो उनका हाथ बहुत ऊंचा जाता है। Don't do things to please anybody. तो ऐसी चीजें मत करो दूसरों को खुश You know, करने when के I लिए। feel that I'm doing things to please everybody, I don't do it. और जब पासवान को ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि वो ऐसी चीजें कर रहे हैं जो दूसरों को खुश कर रही है, तो वो नहीं करते हैं। Because I need to please only Jesus. That's it. क्योंकि उन्हें जो है वो सिर्फ परमेश्वर को जो है वो खुश So करना next है। time during worship, तो अगली बार आराधना के समय lift your hands high. अपने हाथ ऊंचे If उठाओ। your hands are paining, we will catch your both hands and lift it up like Moses. और अगर आपके हाथों में दर्द होता है तो कोई दूसरा आपका हाथ उठा के जो है उसे ऊंचा उठाएगा। Some people cannot stand during worship, as if they got polio in their legs. और कुछ लोग जो है वो आराधना के समय खड़े तक नहीं हो Always they पाते, sit down. वो हर बार बैठते हैं। My legs, sometimes hurt me. और कई बार पासवान के जो पैर है उसमें जो है वो दर्द होता है, Many times. काफी बार। But never have sat during worship. पर वो कभी भी आराधना के समय नहीं That's बैठे। why you see my life and see others. All this you will not see. कैसा बोलते हैं, कैसे लोग सब काउंटिंग, ये सब काउंट हो रहा है. और इसलिए अगर हम देखेंगे तो पासा का जीवन हम देख सकते हैं और अपना खुद का जीवन हम देख I सकते will हैं। never sit. Only when I had to have Asha, I had to carry him, then I used to sit. और पासवान जो है वो कभी भी आराधना के समय नहीं बैठे हैं, सिर्फ आशर जब छोटा था और इन्होंने पकड़ना पड़ता था तब ये बैठे Some होंगे। girls wear high heels and come. अरे मत पहनना फिर, flats पहन. Then you can't stand. Wear flats. Don't do anything which comes in way of honoring God. और जैसे कुछ लड़कियां जो है वो ऊंची एड़ी की जो है वो सैंडल पहन के आती है, फिर उनके पैर में दर्द होता है तो वो बैठ जाते हैं। तो ऐसा कोई चीज मत करो जो परमेश्वर की आराधना में आपके लिए रुकावट If your लाती है। shoes are giving you problems, remove your shoes. Without the shoes, you can stand. Nobody is going to see how smelly your socks are. और अगर आपके जूते आपको तकलीफ देती है तो आप आपके जूते निकाल के जो है वो उसकी आराधना कर That's why सकते we हैं। made nice flooring for you. और इसलिए हमने अच्छी फ्लोरिंग बनाई Next time है। we put carpet also. अगली बार चाहिए तो हम कारपेट भी बिछा So दें। how you pray, how you worship God, lifting your hands. तो हम परमेश्वर की आराधना कैसे करते हैं? हाथ उठाकर। These are all bodily movements, your body gestures. और ये सब हमारे जो शरीर का जो हिलना होता है उस पर निर्भर करता है। Genesis 24 verse 26. उत्पत्ति का 24वां अध्याय 26 वचन। Genesis 24 verse 26. उत्पत्ति का 24वां अध्याय 26 वचन कहता है, तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा। You bow down and worship. हम उसके आगे झुक के जो है उसकी आराधना करते If हैं। you bow down before God, you don't have to bow down before man. तो जब आप परमेश्वर के आगे जो है वो झुकोगे तो आपको मनुष्य के आगे Because झुकना if you नहीं don't पड़ेगा। bow down before God, you keep on bowing and asking your request before man. तो अगर आप परमेश्वर के आगे जो है वो नहीं झुकोगे तो आप लोगों के आगे जो है मनुष्य के आगे जो है वो झुकते रहोगे और अपनी बातें जो है So मनवाते how we रहोगे। pray, how we worship God, lifting our hands, bowing our hands. तो हम परमेश्वर की आराधना कैसे करते हैं? अपने हाथ उठाकर उसके आगे झुककर। One more way of worshiping God is bowing your knee. और एक और तरीका है उसकी आराधना करते हुए अपने घुटनों पर आकर। Some people don't want to bow their knee only. और कुछ लोग जो है वो घुटनों पर आते ही नहीं है। Put salt and bow your knees. It will hurt you nice on the knees. और नमक डालो और फिर अपने घुटने जो है उस पर टेको। People in the olden days, they should worship God this way, intense worship. और पुराने जमाने में लोग जो है परमेश्वर की आराधना ऐसे करते थे कि जहाँ पे वो नमक डालते थे और उस पर अपना घुटना टिकाते थे, जो बहुत दर्द होता You है। can say it is legalism. No, it was love for God. और हम कह सकते हैं कि ये Legalism. हम कह सकते हैं कि उस वक्त जो है ये नियम था कि वो ऐसा कर सकते हैं, पर ये परमेश्वर के लिए प्रेम था उनका। Some of us have never knelt down and worship. और हम में से कितने लोग होंगे जो कभी अपने घुटने पर आकर उन्होंने आराधना नहीं Never we की? have knelt down.
कभी भी हम अपने घुटनों Only पर the नहीं worship leader says that we kneel down. और सिर्फ आराधना लेने वाला अगुआ जब कहता है कि हम अपने घुटनों Feel पर free आएंगे to kneel down wherever you are and worship God. और आपको पूरी आजादी है कि जब कभी आपको महसूस होता है कि आपको घुटने पे आना है तो आप घुटने पर आकर उसकी आराधना For कर that, सकते हैं। wear comfortable clothes so that you can kneel down. और उसके लिए जो है वो सही कपड़े पहन के आओ ताकि आप जो है घुटनों Everything पर should आकर be आराधना done करो। with planning. और हर एक चीज एक योजना के साथ होती है। One pastor said, if you kneel before God, you don't have to kneel before man. और एक पासा ने कहा कि जब आप परमेश्वर के आगे घुटना टिकाओगे तो आपको इंसान के आगे घुटना नहीं टिकाना And if you पड़ेगा। kneel before man, you keep asking help from men. You will always not have respect in your society. और जब आप इंसान के सामने जो है अपना घुटना टिकाओगे और उससे जो है हमेशा मदद मांगते रहोगे तो समाज में आपकी कोई इज्जत नहीं रहती है। But if you don't ask help from anyone, पर आप अगर किसी से कोई मदद नहीं you ask मांगते, help from God. आप परमेश्वर से मदद He मांगते sends the ravens. वो कौवों को He भेजेगा, sends different people to help you. वो अलग अलग लोगों को भेजेगा। That is divine help. वो है एक दैवीय You don't मदद। ask anything, just ask from God. आप किसी से कुछ मत मांगो, सिर्फ परमेश्वर से When I मांगो। wanted to sell my flat, जब पासन अपना घर बेचना चाहते you know, थे I had a time limit of 1 month to sell my flat. और हम सबको पता है कि उनके पास एक समित सीमे था 1 महीने का कि उन्हें अपना घर बेचना Because I था, had to pay the builder. क्योंकि इन्हें बिल्डर को पैसे देने I थे। sold my flat in 9 days. इन्होंने 9 दिन में अपना घर बेच दिया People are already, there were 3-4 flats to be sold, that's what they couldn't sell. I sold it in 9 days. और इनकी ही बिल्डिंग में 2-3 घर और थे बिकने के लिए, वो नहीं बेच पाए पर इन्होंने 9 I दिन didn't में go घर and बेचा। start selling. I just said 2 people sell. I said, God, you take. Abhi, you have to take. Now you are selling my flat. और ये जा जाके लोगों को अपना घर नहीं बेच रहे थे। इन्होंने 2 लोगों को बताया कि इनको घर बेचना है और इन्होंने परमेश्वर के हाथ में चीजें सौंपी कि परमेश्वर अब तू मेरा घर जो है वो बेच, और परमेश्वर ने Try to किया। sell your house. It takes ages. और अपना घर बेचने की कोशिश करो, सालों लग जाते हैं। So praise God because of praise. और परमेश्वर की स्तुति हो कि ये सिर्फ स्तुति की वजह Lord, I से need your help. कि परमेश्वर मुझे तेरी मदद चाहिए। One more way of worshiping. एक और तरीका है You can see in Genesis 17 verse 3. Don't pull up the verse. Genesis 17 verse 3. हम वो वचन उत्पत्ति 17 और 3 अध्याय में देख सकते हैं। Falling prostrate before God, lying on the floor before Him. और परमेश्वर के सामने पूरी तरीके से अपने आप को जो है वो जमीन पर बिछा There देना। was a CEO in the church. कोई भी उसकी आत्मा और सच्चाई में आराधना When नहीं you कर रहा। pray, you seek God. When you worship, God seeks you. तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, और जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमें So ढूंढता if you है। want God to look for you, the King of the universe, the King of kings and the Lord of lords, to look for you, be a worshipper. तो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर जो है वो आपको ढूंढे, जो राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु है, तो आप एक आराधना करने वाले बनो। May His praise be on your lips forever. और उसकी जो स्तुति है वो अपनी जबान पे, अपने लफ्जों पे जो है वो हमेशा रहे। Keep humming the songs. उसके गाने गुनगुनाते रहो, Keep singing the songs. उसके गाने गाते रहो, One day your life will become like that song. और एक दिन आपका जीवन जो है उस गाने जैसा बन Totally your जाएगा, life will turn around. और आपका पूरा जीवन जो है वो बदल जाएगा। People will admire the grace of God in your life. और परमेश्वर जो है वो लोग जो है परमेश्वर के अनुग्रह को जो है वो पसंद करेंगे आपके Let's अंदर। stand in God's presence. आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाएं Let's close our eyes. We learned about praise and worship. और हम हमारी आंखें बंद करेंगे और हमने स्तुति आराधना के बारे में We सीखा learned a lot of things. और हमने काफी बातें सीखी। What praise and worship does. स्तुति आराधना क्या करती How है, can we praise? हम कैसे How स्तुति कर can we सकते हैं, worship? हम कैसे आराधना कर सकते If you हैं। did not get anything, अगर आपने कुछ नहीं सीखा just open your mouth, worship God, lift your hands, worship Him. और सिर्फ अपने मुंह खोलिए, परमेश्वर की आराधना कर, स्तुति करो, अपने हाथ उठाओ और परमेश्वर की स्तुति करो। Let you be the person God is seeking for a worshipper. और आप वो इंसान बनो जिसको परमेश्वर ढूंढ रहा है एक आराधना करने वाला। That Lord, I want to be a worshipper who will worship you in spirit and in truth. Because you don't see my voice, you see my heart. और आप परमेश्वर से कहो कि मैं वो आराधना करने वाला बनना चाहता हूँ जो आत्मा और सच्चाई में जो है आपकी आराधना करे, क्योंकि आप मेरी आवाज तो नहीं मेरी आवाज बड़ी अच्छी नहीं हो, पर आप मेरे हृदय को Father, जानते I हैं। thank you for this time. पिता, इस समय के लिए धन्यवाद Thank देते you हैं, for your word. आपके वचन के लिए धन्यवाद Lord, देते if हैं। anybody's mouth or tongue is bound by the devil who's not letting them loose, I loosen that tongue in the name of Jesus to worship you. और परमेश्वर अगर किसी का मुंह या किसी की जबान जो है शैतान के द्वारा जो है वो बंद की गई है कि वो अपना मुंह ना खोल सके, तो हम उसे अभी इसी वक्त जो है वो छोड़ते हैं, लूज करते हैं यीशु मसीह के नाम If में। any shyness, if any insecurity, if any public fear is there in people worshiping God, I rebuke it in Jesus' name. और परमेश्वर अगर इंसानों में कोई भी शर्म या कोई भी असुरक्षता या लोगों का डर है तो हम उसे तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम में। Give them a heart to worship, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें एक हृदय दीजिए आराधना a करने का, mouth to praise, एक मुंह स्तुति करने के a लिए, hands to clap, हाथ ताली बजाने and के a लिए, life to surrender.
और एक जीवन जो आपको सौंप सके। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Any prayer request? जिसका भी prayer request आप बोलिए।